Hello my dear student, today we study about the division of algebraic expressions. In previous class we study about the how can multiply the algebraic expressions of or polynomial. So first we start the division of algebraic expressions. So first topic is division of a monomial by a monomial. मीन्स हम स्टार्ट करेंगे मोनोमियल से. तो हाउ कैन डिवाइड ए मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल. मान लो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें सिंगल टर्म हो और सिंगल टर्म वाले मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो हाउ कैन डिवाइड द मोनोमियल बाय मोनोमियल. बिफोर वी स्टार्ट द डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, वी सी द रूल व्हेन वी डिवाइड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड बाय डिवाइजर, तो फर्स्ट वन मान लेते हैं यहाँ पर डिविडेंट. यहाँ क्या है, यहाँ से डिविडेंट डिवाइडेड बाय डिवाइजर. यहाँ पर डिवाइजर है. तो यहाँ जो क्वेश्चन का साइन है, हमको पहले ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट विल द क्वेश्चन साइन. व्हेन द डिविडेंट इज नेगेटिव एंड डिवाइजर इज नेगेटिव, है ना. व्हेन डिविडेंट इज नेगेटिव डिवाइडेड बाय डिवाइजर is negative, then quotient will be positive. When dividend is plus divided by divisor is plus, then quotient will be also plus. When dividend is negative divided by divisor is positive, then quotient will be in negative. And when the dividend is positive and the divisor is negative, then the quotient will be also in negative. इसका मतलब हो गया कि when we divide dividend by divisor, if the dividend and divisor have the same sign का मीनिंग दोनों या तो माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, तो जो उसका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, प्लस में ही आएगा. या दोनों में से क्या हो कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, इसमें भी माइनस प्लस, इसमें भी प्लस और माइनस, तो दोनों का साइन क्या आएगा, माइनस आएगा. When we divide a monomial by monomial, we use the laws of exponent also. Suppose a raised to the power m divided by a raised to the power n equal to a raised to the power m minus n. जब भी हम मोनोमियल को अनदर मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो कोई भी डिवीजन प्रोसेस हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, when we divide algebraic expression by another algebraic expression, we use the laws of exponent. Second laws of exponent, a raised to power m divided by a raised to power n equal to a raised to power m minus n. तो ये जो laws of exponent है, इसका बहुत ही यूज होगा इसमें when we divide the algebraic expression by another algebraic expressions. So we see the example based on division of a monomial by monomial. तो first to divide the monomial by a monomial. Example number 7, divide first 18x square y by 6xy. तो 18x square y is a monomial and 6xy is also monomial. We divide monomial by monomial. Second, minus 35m n square p by 7np. तो minus 35m n square p is a monomial. 7np is also monomial. Third, this one is a third, minus 25a cube b square c by minus 5ab square c. तो minus 25a cube b square c is a monomial and minus 5ab square c is also monomial. तो first we see the first one. Solve. Divide 18x square y by 6xy. Then you write also by. डिवाइड करना मतलब 18x square y डिवाइड बाई में साइन नहीं लगेगा, ये हो जाएगा 6xy. तो वी डिवाइड 18x square y बाई 6xy, मीन्स 18x square y इज a dividend and 6xy is a divisor. So we write this also 18x square y upon 6xy. हम इसको ऐसे ले सकते हैं ना. तो यहाँ से क्या हो जाएगा नेक्स्ट वन. अब 18x square y, तो यहाँ से ले सकते हैं 18 इंटू x स्क्वायर इंटू y. वी राइट इन फैक्टर्स फॉर्म, हो जाएगा 6 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू, हम भी डिवाइड कांस्टेंट विथ कांस्टेंट, नंबर बाय नंबर. तो हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे,
तो ये रहेगा, हम लिख सकते हैं इसको 18/6 इंटू 18/6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से। द नेक्स्ट वन इक्वल टू 6 1 जा 6 6 3 जा, तो यहाँ बच गया 3 इंटू नेक्स्ट वन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई एक्स, दोनों का जो बेस है सेम है, बट पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो बाय यूजिंग लास्ट वो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, a raised to the power m डिवाइडेड बाई a raised to the power n इक्वल टू a raised to the power m माइनस n। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, दोनों का बेस तो सेम है ना, ये तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसका पावर कितना हुआ 1, यहाँ भी पावर कितना हुआ 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेस्ट पावर 2 माइनस 1 एक्स रेस्ट पावर 1 इंटू वाई रेस्ट की पावर 0, एक्स रेस्ट पावर 1 मीन्स एक्स इंटू वाई रेस्ट पावर 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस्ट पावर 0, ए रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो वाई रेस्ट पावर 0 इक्वल कितना 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 3x, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x। 3x इज द क्वोशंट ऑफ व्हेन वी डिवाइड 18x square y by 6xy. So we see the second sub question. For example number 7. Second, minus 35 mn square p by 7n p. We divide minus 35 mn square p by 7n p. Then we write all this minus 35 mn square p. डिवाइड का साइन लगाएंगे, हो जाएगा 7n p इक्वल टू माइनस 35 mn स्क्वायर p अपॉन 7n p इक्वल टू, अब इसको हम अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। माइनस 35 इंटू एम इंटू सॉरी वी राइट माइनस 35 mn स्क्वायर p अकॉर्डिंग टू इट्स फैक्टर्स, तो माइनस 35 इंटू एम इंटू एन स्क्वायर इंटू p अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से 7 इंटू एन इंटू पी, 7 इंटू एन इंटू पी। नेक्स्ट वन इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 7, माइनस 35 अपॉन 7 इंटू एम, अब एम तो नीचे नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम इसको ले सकते हैं एम अपॉन 1 इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन, है ना, इंटू पी अपॉन पी। अब इसको ऐसे लिख रहे हैं माइनस 35 अपॉन 7, नंबर को नंबर से डिवाइड कर दिए, इंटू एम का नहीं है तो एम को एज इट इज लिख दिए यहाँ से, एन स्क्वायर यहाँ एन है तो एन स्क्वायर अपॉन एन हो गया, इंटू पी अपॉन पी हो गया। नेक्स्ट वन 7 1 7 7 37 5 जा 35, तो माइनस 5 इंटू एम, एम अपॉन एन मीन्स एम इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन, तो एन डैश स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो ऊपर जाके माइनस होगा, इंटू पी इसका पावर 1 तो p माइनस 1। देन नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 5 m इंटू एन रेस्ट पावर 2 माइनस 1 एन रेस्ट पावर 1 इंटू p रेस्ट पावर 1 माइनस 1, ओके p रेस्ट पावर 0 एंड वी नो दैट सिंस a रेस्ट पावर 0 इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 5 इंटू एन इंटू 1 equal to minus 5 mn. When we multiply minus 5 m into n minus we get minus 5 mn into 1 minus 5 mn. यहाँ से ये कैसे हुआ, by using this identity a raised to power m upon a raised to power n equal to sorry laws of exponent a raised to power m minus n. So we see the third question. Third, minus 25 a cube b square c by minus 5 a b square c. So how can divide minus 25 a cube b square c by minus 5 a b square c? तो ये हो जाएगा minus 25 a cube b square c divided by minus 5 a b square c। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं minus 25 a cube b square c अपॉन माइनस 5
ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू -25 इंटू ये क्या हो जाएगा ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी अपॉन -5 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। नेक्स्ट इक्वल टू हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, सी को है ना, सी को भी कैंसिल कर, सी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 5 1 5 5 5 जा 25, तो माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, दोनों के यहाँ पर डिविडेंड डिवाइजर में दोनों में सेम साइन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हो जाएगा 5 इंटू ए क्यूब माइनस इसका पावर क्या हुआ 1 इंटू, अब यहाँ से बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बोथ कैंसिल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं बी रेस्ट पावर 0 है, ये हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इक्वल टू 5 इंटू ए क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1, तो हो जाएगा 5a स्क्वायर। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। तो डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल मीन्स व्हेन वी डिवाइड ए monomial by monomial, we divide a binomial by a monomial, we divide a trinomial by a monomial। यार पॉलिनोमियल का मीनिंग ये भी हो सकता है कि इट में बी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करें, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। तो फर्स्ट एग्जांपल 8, डिवाइड फर्स्ट 16m स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 12mn स्क्वायर by 2m। तो हमें टर्म्स इन फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 ट्राइनोमियल इज डिवाइडेड बाय मोनोमियल 2m। सेकंड इज 4y raised to power 9 minus 3y raised to power 7 plus 2y raised to power 4 by y cube। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 16m स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 12mn स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2m। बाई का मतलब डिवाइडेड बाई 2m हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से 16m स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 12mn स्क्वायर अपॉन ये डिवाइड है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम इसको वी डिवाइड 16m स्क्वायर बाई 2, 16m स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 12mn स्क्वायर डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, तो हम इसको सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। 16m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 16m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्या है प्लस, देन 4mn डिवाइडेड बाई 2, देन माइनस ये हो जाएगा 12mn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16m स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 16 इंटू m स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू m इंटू n अपॉन 2 माइनस 12 इंटू m इंटू n स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर 8m स्क्वायर प्लस 2mn, 2 इंटू m इंटू n 2mn माइनस 6 इंटू m 6m माइनस 6m and square। We get a quotient at m square plus 2mn minus 6mn square when we divide 16m square plus 4mn minus 12mn square by 2m। We see the second 4y raised to power 9 minus 4y raised to power 9 minus 3y raised to power 7 plus 2y raised to power 4 by y cube। सॉल्व ये आएगा 4y raised to power 9 माइनस 3y raised to power 7 प्लस 2y raised to power 4 डिवाइडेड बाई y क्यूब। मतलब ये ट्राइनोमियल ही डिवाइड हो रहा है, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से इक्वल टू 4y raised to power 9 माइनस 3y raised to power 7 प्लस 2y raised to power 4 होल डिवाइडेड बाई y क्यूब इक्वल, ये क्या हो सकता है यहाँ से 4y raised to power 9 अपॉन सेपरेट करने तो हो जाएगा y क्यूब, 4y raised to power 9 डिवाइडेड बाई y क्यूब
अब यह माइनस है तो यह माइनस लिखेंगे 3y रेस्ट पावर 7 डिवाइडेड बाई वाई क्यूब अगेन प्लस 2y रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू वाई रेस्ट पावर 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू वाई रेस्ट पावर 9 माइनस 3। ये ऊपर चला गया ना, हम ये वाई रेस्ट पावर 9 डिवाइडेड बाई वाई रेस्ट पावर 3 है तो ये तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a रेस्ट पावर m डिवाइडेड बाई a रेस्ट पावर n इक्वल टू a रेस्ट पावर m माइनस n, देन माइनस ये 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा y रेस्ट पावर 7 डिवाइडेड बाई y रेस्ट पावर 3 मीन्स y रेस्ट पावर 7 माइनस 3, यहाँ पर प्लस 2 इंटू y रेस्ट पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू y रेस्ट पावर 9 माइनस 3 हो जाएगा y रेस्ट पावर 6 माइनस 3 y रेस्ट पावर 7 माइनस 4 y रेस्ट पावर 4 प्लस 2 इंटू y रेस्ट पावर 4 माइनस 1 माइनस 3 y रेस्ट पावर 1 इक्वल टू 4 y रेस्ट पावर 6 माइनस 3 y रेस्ट पावर 4 प्लस 2 y रेस्ट पावर 1 का मतलब है वो y रेस्ट पावर 1 का मतलब यहाँ जो हम मोल लिखते हैं उसको नहीं लिखेंगे, हो जाएगा वो 2 रेस्ट पावर y 2y, तो 4 रेस्ट पावर 4 y रेस्ट पावर 6 माइनस 3 y रेस्ट पावर 4 प्लस 2y इज द क्वोशंट व्हेन वी डिवाइड 4y रेस्ट पावर 9 माइनस 3y रेस्ट पावर 7 प्लस 2y रेस्ट पावर 4 बाई y क्यूब।